So today we'll revise 1 markers of retirement or death of partner. मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों ने हैंड रेज करने हैं, बट मेक इट श्योर कि आपने पहले अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है. डोंट वेस्ट टाइम इन दिस कि मैं बोलूँ फिर आप अपने आप को अनम्यूट करो फिर आप आंसर दो. जिसने आंसर देना है तो अपने आप जब हैंड रेज करेगा ना साथ में अपने आप को अनम्यूट भी करेगा. अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन इन दैट टाइम. आई कांट वेस्ट द टाइम. ठीक है, ये आपने जजमेंट करनी है कि वो डेथ ऑफ पार्टनर की बात हो रही है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात हो रही है. मैं कंबाइन करता हूँ, अदरवाइज क्लियर ही होता है ऐसी कोई बात नहीं है. The amount due to deceased partner is paid to dash. Hand raise please. Yes, Shivanshi. Executor of deceased partner. Executor account या legal hire account, उसके नेक्स्ट जो की इंडिकेट होती है दोनों आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Gaining ratio is formula I am asking. Formula of gaining ratio is new ratio minus old ratio. new minus old. बिल्कुल ठीक है. Then is state the basis of calculating the amount of profit payable to the legal representative of a deceased partner in the year of death. State the basis of calculating the amount of profit payable to the legal representative of a deceased partner in the year of death. Yanshi. So sales basis and time basis. Two bases are there. One is sales basis and other is time basis. Next is unless agreed otherwise, it is presumed that the continuing partners gain in their dash ratio. Unless otherwise agreed, it is presumed that the continuing partners gain in their dash ratio. Old ratio. Old ratio. Old proportion ratio of partners. Fine. Yug, Vansh, and Kamal. Three partners are there. Yug, Vansh, and Kamal. They are sharing profit loss in the ratio of 2:1. It says Vansh died at that. Vansh died. This is the deceased partner, and at that time, goodwill of the firm was valued at rupees 30,000. Goodwill of the firm is rupees 30,000. The contribution to be made by Yug and Kamal in order to pay off Vansh will be dash and dash respectively. The contribution for this to be made by Yug and Kamal to pay off Vansh will be dash and dash respectively. Shivanshi. Yug 5,000 and Kamal 2,500. Yug 5 and Kamal 25. ये कैसे आया बेटा? ये कैसे निकाला? उसकी गुडविल उसकी आई थी अमाउंट यू 12,000 आई थी तो 12,000 को अच्छा वंश की आ गई आपकी 30,000 into 2/5 12,000 8,000 4,000. उसके बाद में आपने क्या किया? 12,000 into 2/5 युग की निकालने के लिए 12,000 into 2/5 निकालोगे तो 5 and 25 कैसे आ सकती है? और मोर ओवर 2/5 क्यों निकाल रहे हो? Goodwill here is to be distributed in which ratio? New ratio. 2:1 पे निकालना.
जो न्यू रेशियो में नहीं करते, किस रेशियो में करते हैं? गुडविल को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ट्रेनिंग रेशियो, गेनिंग और न्यू सेम है। तो अगर आपने आंसर न्यू दे दिया ना, गलत हो जाएगा। आपने आंसर गेनिंग देना है, चाहे इस केस में गेनिंग और न्यू सेम है ना। तो 2:1 जब इसको हम करेंगे 2/3 1/3 इट विल बी 8000 एंड 4000, नॉट 5 and 25। आपने शिवांगी यहाँ तक ठीक किया था 12,000 तक। उसके बाद जब 12 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाउ इट कैन बी 5 and 25? 5 and 25 को करने नहीं आ रहा। अगर हम 30 को भी करें ना 2:1 में, तब भी नहीं 5 and 25 आ रहा, तब भी 20 और 10 आ रहा है ना। पता नहीं आपने किस हिसाब से कैलकुलेट किया कि 525 आ गया। आपने 12 को जब गेनिंग रेशियो में करना है, गेनिंग रेशियो में सेम एज टू रेशियो या न्यू रेशियो, 2:1 में 8000 आ रहा है युग का और 4000 आ रहा है कमल का। 8000 and 4000, इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन। When the firm pays an amount in excess of total amount due to deceased partner, then excess amount is treated as cash. I'm repeating it. When firm pays an amount in excess of total amount due to deceased partner, the excess amount is treated as cash. Molly. Goodwill. Goodwill, which is known as goodwill. हिडन गुडविल जिसे हम कह देते हैं ना। हम कल भी यही बात कर रहे थे, दिव्यांशी ने क्वेश्चन आपने उसको 1.5 लाख रुपए पे करना था, पे किया है 2 लाख रुपए, तो 50,000 रुपया है तो गुडविल का। ये उस क्वेश्चन की बात हो रही है। एक्सेस अमाउंट इज बीइंग पेड टू द डिसीज्ड पार्टनर देन द एक्चुअल अमाउंट ड्यू टू हिम, वो डिफरेंस इज गुडविल, जिसे अपनी लैंग्वेज में हम क्या देते हैं, हिडन गुडविल है वो गुडविल। हिडन क्यों कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दी होती। कंसेप्ट हिडन गुडविल नहीं है, कंसेप्ट इज गुडविल ओनली, है ना। हम क्वेश्चन में उसको बिल्कुल दी नहीं हुई है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ रही है, इसलिए उसको हिडन बोल देते हैं। अदरवाइज इट इज गुडविल। आपने वहां आंसर में इसको हिडन गुडविल नहीं लिखना है, गुडविल लिखना है। डिफरेंस इज गुडविल, है ना। वो सब में दी हुई कि नहीं दी हुई है वो डिपेंड करता है हिडन है कि नहीं हिडन है। At the time of death of partner, unrecorded assets are debited to revaluation account. True or false? Unrecorded assets are debited to revaluation account. True or false? False. False. Prove करिए इसको भी। आंसर ठीक कैसे आएगा? They are credited to revaluation. Credited to revaluation. They are credited to revaluation. ठीक है बेटे। Then is interest of loan by the deceased partner to the firm if it is not agreed in the partnership deed, or we can say the partnership deed is silent. At what rate of interest the loan is given? Loan carries interest at what rate %? मैं बात कर रहा हूँ डिजीज पार्टनर की या रिटायरिंग पार्टनर की। उसका पैसा हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड इट इज एग्रीड एट द पॉइंट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ की लोन जो है कितने % इंटरेस्ट कैरी करेगा। अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज ना एग्री हो, वहां पे पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो या उस टाइम पे एग्रीमेंट ना हो, then at what rate of interest this loan is there? लोन 6%. ये बेटा पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर बता दे शायद बता रहे। फिर आपके आंसर के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए अगर आप बता रहे। इट मींस कि आप श्योर नहीं हो, है ना। 6% वो तो नहीं था जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर्स लोन विदाउट पार्टनरशिप डीड कर रहे थे हम चैप्टर 1 बेसिक्स में, वो कितने % था? वो कितने % था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म? नवजोत वो कितने % था? वो 6। तो ये भी 6।
ये भी 6 सर 6 या 9 में से कुछ था तो मुझे लगा 6 या या शायद 9। 9। चलो 9 को उल्टा देखो तब भी 6 ही होता है। 9 को दूसरी साइड से तो 6 ही होता है। आंसर इज राइट नवजोत, इट इज 6% बेटा। अगर मैं यस क्या देता ना तो आपको कंफ्यूजन रहती कि 6 कौन सा था, हो रहा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला था या ये वाला। ये भी 6 ही है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर का, इट आल्सो कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। वो वाला इंटरेस्ट भी 6% ही था। ये भी वही लोन है, वही लोन है रिटायरिंग पार्टनर का लोन, चाहे वो पार्टनर बाहर चला गया है ना। पार्टनर का लोन तो नहीं है कोर्स, लेकिन पहले पार्टनर था, उसका लोन कर दिया ना। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है कि वो लोन कितना होगा, तो ये 6% होगा। इसका रेट भी सेम ही है। नवजोत क्लियर है पॉइंट? यस सर। Then is A, B and C are partners in the firm sharing profit losses in the ratio of 3:1. C died and the new ratio will be 3:2. True or false? हाँ जी, true. Because nothing is mentioned, then simply we delete the share of deceased partner from the old profit ratio and whatever is left is the new profit ratio. अगर वो 3:2:1 था और इसकी डेथ हो गई है तो the new ratio will be same as old ratio, that is the 3:2. Then है increase in liability or unrecorded liability being recorded at the time of death of a partner is debited to revaluation account. Is debited to revaluation account. Increase in liability or any unrecorded liability. Please and please. Anyone else? Ashta Arora. हाँ जी, हाँ जी। वो बेटा मतलब फीलिंग ट्रू वाली आ रही है लेकिन आवाज ही नहीं आ रही है। सर ट्रू। हाँ अब आई है आवाज। ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज यू पास द एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हमारा लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है। देन इज accumulated profits and losses on the death of partner will be debited and credited to partner's capital account in new profit ratio. True or false? Shivanshi. So false. False. Why false? So false. हाँ जी false, बिल्कुल ठीक है। हाफ मार्क। रीजन क्या है इसका बेटा? So old ratio में distribute होता है। बिल्कुल ठीक है। It is not distributed in new profit ratio, but it is distributed in the old profit ratio. Next is at the time of death of partner, balance of revaluation account is transferred to dash. Balance of revaluation account is transferred to, yes, Vandana. Deceased partner executive account. Oh, कुछ balance of revaluation is transferred to dash। थोड़ा इसको और थोड़ा वास्ट करो आंसर को। I am not asking about the deceased partner's share of profit or loss. Am I clear? I am not asking that deceased partner. I am simply asking profit or loss on revaluation will be transferred to partners capital. To Partners capital account. partners capital. Opposite side of partners capital. बंदना simply partners capital account। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि डिजीज्ड पार्टनर का शेयर। पहली बात। दूसरी बात, अगर डिजीज्ड का भी होता ना तो भी हम डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल में ही डालते हैं। वी नेवर पुट इट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक्चुअली हम बाद में सारा प्लस करके माइनस करके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर, है ना वंदना?
मेरी बात समझ आई बच्चे? सो जो आपका आंसर है, वो जो क्वेश्चन था वो ये था दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, उसने कहीं नहीं कहा डीजीएस पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है। इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर वो कहता डिजीज पार्टनर प्रॉफिट और लॉस का शेयर, तो वो डिजीज पार्टनर कैपिटल में चला जाता, ठीक है। वन मोर इज देयर, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर प्लस एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू डैश। existing profit share plus acquired profit share is equal to dash. Dimension. Gain. Acquired profit share is gain. Acquired profit share itself is a gain. Existing profit share means old. Plus acquired profit share means gain. New profit share. New ratio. Existing means old ratio. Acquired means gain. Old plus gain is equal to new ratio. Okay. One more last question is, on the death of a partner, his legal representatives are entitled to the profit since the beginning of the financial year up to the date of dash. His death. Navjot. Until the date of his death. Yes, up to the date of death. कोई डाउट बच्चे और आज के क्वेश्चन में कोई डाउट हो? चलिए, then the meeting be ended.